So wish everyone a very good evening. And I, Deepak Srivastava, welcome you to this learning session organized by the PSI community, which is the Public Speaking Institute, with a vision to bring into eminent speakers from different fields who can add value to your life. And this adding of value is not only just by saying it is what they have lived, they have passed through, they have gone through, and they will be delivering it to us for our benefits using the power of communication. So before we proceed, I would like to give you a bit of insight about the vision, mission, and objective of our PSI community. The vision of the PSI community is to have at least one public speaker in every home so that every home is inspired with that person. Our mission of the PSI community is curated by none other than our own great author Sherry sir, and his mission is our mission too, the mission of PSI community, and this is to create 1 million public speakers by the year 2030. Our Excellent. objective, our objective is to promote public speaking presentation skills, effective communication, storytelling, etc., etc. The list is very long. I don't want to go into all detail as of now, but yes, it is a marvelous opportunity for everyone to enhance themselves. Before we proceed, a bit of request. Please maintain the decorum of the forum. Do not unmute yourself unless you are invited or asked for, and keep your question and answer sessions for the end. Now, as we have some new members who have joined in for the first time, I take the opportunity to invite author Sherry sir and request everyone to please unmute yourself, and let's give an applause to author Sherry sir, and let me introduce you. Thank you, Deepak. Thanks. To himself. He is not just a person, he is not just a communication expert, he is not just my only mentor, he is a very well known international public speaking coach and mentor who has created 15,000 plus public speakers and is on a mission to create 1 million public speakers by 2030, which is also now a mission of the PSI community. He is founder and president of MS Talks India, which is a public speaking platform. And this platform has given access to 20,000 plus speakers across the world. And what more, he is 7 times international TEDx speaker, 3 times Joe Stock speaker, and author of international bestsellers. Not only this, there are more accolades to him, and he also belongs to a family with 4 generations of authors, which include his dad, his wife, and his daughter, and they are filed for the Limca Book of Records. And now I'll request everyone to welcome our own Mrs. Madhu Khareji. She is not just an author, a poetess, a motivational speaker, YouTuber, social influencer, but she is an expert in allowing you to tell how you can have wonderful relations with not just yourself, your family, your friends, anyone you want to have relations with. And what is that takes you to maintain the relation? Making relation is easy, but maintaining relation is a little bit tough. And for that, I would request Madam Madhu Khareji to please come on stage and take the charge, ma'am. We look forward to hearing from you on this insightful site. Thank you very much. Please. Thank you so much, Deepak ji, for inviting me on this platform, which is really a rare honor for me. And I'm so happy to be here. I thank author Sherry for his commendable work that he's doing. He's having all the zeal and the spirit to work continuously for his mission and his vision. And I wish him all the very best in life. So let us start the session of cordial relations, which is very close to my heart, because I feel the day we are born, we are surrounded by so many relations, whether it is
the relation of a mother-daughter, mother-son, father-daughter, father-son, or so many. How to maintain cordial relationship with everyone, not only with your blood relations, but with your friends, with your relatives, and even with the strangers. I feel that we should keep certain important things in mind to maintain beautiful relationship. And for that, I want all of you who are present here to give a lovely smile. Please. I want to see beautiful smile on your faces, and you all are looking so beautiful. So the first and the foremost important quality for maintaining any relationship is smile. Yes, the smile which you are having now, the innocent and the pure smile. सबसे पहले हमको इन बातों का ध्यान रखना ही है कि हम जिससे भी मिलें, जब भी मिलें, हमें मुस्कुराना है. हमारे चेहरे पर एक मृदुल मुस्कान, इनोसेंट स्माइल होनी ही चाहिए, क्योंकि ये स्माइल इतनी एन्चेंटिक होती है, इतनी चुंबकीय होती है, मैं कहूंगी कि आप बहुत जल्दी आपका एक करिश्मा बना लेते हैं और आपके उस ऑरा में आपके जो भी मिलने वाले हैं, रिलेटिव्स हैं, फ्रेंड्स हैं, anyone, your brothers, your sister, anyone, they can come very close to you. A relationship में it is very important that we should love each other. The vibrations of love, they are transmitted not by saying that I love you. It's not required. Just a small little smile, a small little words, and you spread love all around. So that is a basic requirement of any relationship. Do you agree? Raise your hands if you agree with me. Yes, thank you so much. Now, another thing which I feel is that respect, आदर, हमें एक दूसरे का सम्मान करना है, चाहे वो कोई भी हो. कई बार हम ये गलत फहमी या खुश फहमी में रहते हैं कि सम्मान केवल बड़ों को देना है. ऐसा नहीं है. हमें सम्मान सबको देना है, चाहे वो छोटा नन्हा बच्चा भी क्यों ना हो. We have to give respect. और जब हम सम्मान देते हैं, हमें पता है जब भी हमें सम्मान मिला है, हम अपने आप को एक पेडिस्टल ऊंचे महसूस करते हैं, गौरवान्वित महसूस करते हैं, और फिर हमारा जो फ्लो ऑफ वर्ड्स होता है, फ्लो ऑफ वाइब्रेशंस होता है, that becomes very powerful and positive. मैंने एक छोटी सी इसके ऊपर मैं कहूंगी कुछ लाइनें लिखी हैं जो शायद आप सबको अच्छी लगेंगी, और मुझे ऐसा लगता है कि रिश्तों में ये सारी चीजें बहुत महत्वपूर्ण हैं. जैसे रिश्तों में सम्मान हो, अवहेलना नहीं, विश्वास हो, धोखा नहीं, ईमानदारी हो, बेईमानी नहीं, इसरार हो, तकरार नहीं, खामोशी हो, चुप नहीं, गलती हो, पुनरावृत्ति नहीं, सच्चाई हो, दिखावा नहीं, सादगी हो, अहंकार नहीं, क्षमा हो, आत्मग्लानि नहीं. ये तो
कुछ ऐसे शब्द हैं या कुछ ऐसी लाइनें हैं, कुछ ऐसी बातें हैं जो मुझे लगता है मैंने जिंदगी में जो भी मेरा अनुभव है उसमें इन सब को मैंने अपना के देखा है कि ऐसा सब होने से रिश्तों में एक मजबूती आ जाती है, बहुत स्ट्रेंथ आ जाती है जब हम इन चीजों का ध्यान रखते हैं. एंड वी मस्ट टेक केयर ऑफ ऑल दीज थिंग्स. दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. बात चल रही थी हमारी रेस्पेक्ट ईच अदर. सबसे पहले तो मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि जो मैंने आपको अभी अपनी छोटी सी रचना पढ़ के सुनाई, आपको कैसी लगी? अच्छी लगी ना? बिल्कुल अच्छी लगी है. और आप सबके जीवन में भी बहुत सारे अनुभव होंगे, बहुत सारी चीजें आप पहले से ही महसूस कर रहे होंगे, क्योंकि मुझे पता है आपके पास कहीं ज्यादा नॉलेज है, कहीं ज्यादा ज्ञान है और जीवन का बहुत खूबसूरत अनुभव भी है जिसमें कड़वे मीठे सारे अनुभव शामिल हैं. हम बात कर रहे थे रिस्पेक्ट की. इज्जत हमें देनी ही है. दूसरी एक बहुत बड़ी बात जो अक्सर हो जाती है, एक वो सुना है ना आपने, निंदक नियरे राखिए आंगन कुटी छवाए. तो निंदक नियरे राखिए, ये बात तो बिल्कुल सही है, पर मैं इसमें थोड़ा सा कुछ कहना चाहूंगी कि निंदक नियरे राखिए का मतलब ये नहीं है कि आप जिससे मिले उसकी निंदा निकाल के ले आए और निंदा करना शुरू कर दें और वो आपको अपने बिल्कुल करीब कर लेगा. ऐसा नहीं है. जहां तक हो आप अप्रिशिएट कीजिए. ट्राई टू अप्रिशिएट एवरीवन, बट that should never be false appreciation. Appreciation has to be very truthful. अब आप हो सकता है ये सोचिए कि कुछ लोगों में तो तारीफ करने लायक कोई बात ही नहीं होती. जी नहीं हुजूर, अगर आप बहुत ध्यान से, बहुत प्यार से किसी को भी देखें तो आपको जरूर खूबियां नजर आ जाएंगी. कोई ना कोई ऐसी खास खूबी होगी, जैसे किसी की आवाज बहुत प्यारी है, किसी की आंखें बहुत प्यारी हैं, किसी का कद बड़ा अच्छा है, किसी के घर का डेकोरेशन बहुत सुंदर है. कुछ भी, कुछ भी. और खुद सोचिए, जब हमारी कोई सच्ची तारीफ करता है तो हमारा दिल 2 गुना 4 गुना हो जाता है, हम खुश हो जाते हैं. और मैं वाइब्रेशंस पर बहुत बिलीव करती हूँ. somehow I feel I am a spiritual person. और वाइब्रेशंस दे मैटर. जब भी आप अप्रिशिएट करते हैं, आपकी पॉजिटिव वाइब्रेशंस दे स्प्रेड ऑल ओवर द साइड एंड यू गेट वेरी गुड रिस्पॉन्स. दूसरी बात आ जाती है, हम बात करते समय, जब हम आपस में बात करते हैं रिश्तों में, किसी से भी, चाहे वो भाई हो, बहन हो, माँ हो, पापा हो, चाचा हो, चाची हो, या फिर हमारे दोस्त हो, रिश्तेदार हो, स्ट्रेंजर हो, यहाँ तक कि आपके घर में जो डिलीवरी बॉय आता है कुछ लेकर, उसके साथ भी आप किन शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं, हाउ यू आर टॉकिंग, what words you are using, they have to be measured. आपको बहुत सोच समझकर शब्दों का इस्तेमाल करना चाहिए. हमें कई बार क्या होता है, हम भूल जाते हैं जल्दी में, और हमें लगता है हमने तो प्यार में बोला था, हमारा इंटेंशन नहीं, ये नहीं था, हमने तो कह दिया था, बट वी नेवर मेंट इट. ये सब की नौबत ना आए बाद में समझाने की, बताने की. हमें पहली बार में ही अगर हम अपने शब्दों का सही चुनाव कर लेंगे तो बहुत मजा रहेगा.
बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि फिर आपको सफाई देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप इस बात से सहमत है कि नहीं? आपको लगता है ऐसा होना चाहिए? जी बिल्कुल, बिल्कुल। और मुझे पूरा यकीन है कि आप सब इस बात का बेहद ख्याल रखते हैं, पर मेरे से जीवन में कई बार ये चूक हुई है और मैंने महसूस किया कि अगर सही शब्दों का चुनाव होता तो शायद बहुत बेहतर होता। आपको याद होगा, अगर महाभारत में आपने आप सबको पता ही होगा कि द्रौपदी के जरा से शब्दों ने पूरा महाभारत रच डाला। तो ये शब्दों का ही सारा खेल है, जिसमें हम अपने संबंधों को बिगाड़ लेते हैं या बना लेते हैं। तो वी मस्ट टेक केयर ऑफ वर्ड्स। देन हमें एक दूसरे को जब हम बात करते हैं तो हमारे अंदर आर्टिफिशियलिटी नहीं होनी चाहिए। ट्रूथफुलनेस तो रहना ही है, सच्चाई तो रहना ही है। हमें सिंपल रहना है, जैसे हम हैं हमें वैसे ही रहना है, बिल्कुल नेचुरल, बिल्कुल सिंपल। और हमेशा ऐसा नहीं कि आज हम मिले हैं तो हम इस तरीके से बात करें, एक मुखौटा दूसरा लगा के बैठे। मुखौटे लगा लेते हैं हम सब, है ना? आप और हम सब यही काम करते हैं कि अगर हमारा कोई बॉस आ गया है, हम दूसरा मुखौटा लगा लेते हैं उसके सामने, है ना? या जिससे हमें थोड़ा सा मन में भय है या कुछ है तो हमारा अलग मुखौटा हो जाता है। हमारा दोस्त आ गया तो हमारे मुखौटे बदलते, बदलिए मुखौटे बदलिए, कोई दिक्कत नहीं है। पर ख्याल रखिए कि आपका नेचुरल स्टाइल, आपका ओरिजिनल स्टाइल आपका सिग्नेचर बन जाए। इट शुड बिकम अ सिग्नेचर। आप जैसे हैं, लोग आपको आपकी शख्सियत देखकर ही पहचान जाएं कि हम उनसे बात कर रहे हैं। इससे भी रिश्तों में गरिमा बनी रहती है, जिसका बहुत ख्याल रखने की हमें जरूरत है। कई बार जब बातचीत का सिलसिला शुरू होता है, चाहे वो दोस्तों के साथ हो या फिर हमारे रिश्तेदारों के साथ हो या अजनबियों के साथ, हमारा एक अजीब सा हम संबंध बना लेते हैं और उसमें कुछ भी बोलते हैं, कहीं भी कुछ भी। जब हम बहुत बोलते हैं तो उसमें क्या होता है? लूज टॉक। Loose talk is very dangerous for any relationship. We have to be very, very careful कि हमारी बातचीत लूज टॉक में कन्वर्ट कभी ना हो। होता है ना ऐसा? आप में से कितने उन लोगों के साथ ये होता है? हो जाता है। आप सबके साथ नहीं होता, पर हाँ हो जाता है। तो ऐसा ना हो, इस पर भी हमें बहुत कहीं ना कहीं ख्याल रखना है, ध्यान रखना है कि हम अपना लूज टॉक पे ना आए। दूसरी एक जो बड़ी बात जो अक्सर लोग मिस करते हैं, और मेरे से जब सलाह लेने, कुछ मेरे एडवाइस लेने के लिए आते हैं, तो वो एक बात ये भी समझ आती है कि वो हमारी बात सुनते ही नहीं है। हम जो कहना चाहते हैं वो सुनते ही नहीं है, पहले ही हमको बोलने लगते हैं, पहले ही हमको जवाब देने लगते हैं, अपना ही कुछ बताने लगते हैं। होता है ना ऐसा? कई बार हम बहुत एक्साइटमेंट में होते हैं, सामने जो व्यक्ति बोल रहा है हम उसको सुनने का वक्त ही नहीं देते। उसका आधा सेंटेंस हो पाता है और हम जल्दी से उसे बताने लगते हैं, हाँ ऐसा है, हाँ ये ऐसा है, नहीं इसमें ये करना चाहिए, ये करना चाहिए। होता है ना ऐसा? होता है। शायद हो सकता है आप लोगों के साथ ना होता हो, पर मेरे साथ तो हो जाता है। तो हमें इसका भी बहुत ध्यान रखना है कि हम सुने ज्यादा, बोलें कम। पहले सुने और फिर बोलें। और बोलें कैसा? कैसा? जी हाँ, मीठा, सुंदर,
सच बोलने का भी एक अंदाज होता है। झूठ नहीं बोलना चाहिए, बिल्कुल सही बात है, पर सच अगर आप बोल रहे हैं तो उसमें मिठास जरूर रखिए। वो सच्चाई को भी इतनी खूबसूरती से, इतने अच्छे से प्रस्तुत करिए, क्योंकि जब हमारा किसी से संबंध होता है तो हम इस बात का पूरा, देखिए लाइट चली गई है पर कोई बात नहीं, हम तो बात करते रहेंगे। तो कोई बात नहीं, अगर कभी ऐसा हो जाता है कि हमें लगता है सच बोलना ही है और सच बोलना ही चाहिए, जब जरूरत है आप सच बोलने में पीछे ना हटें, सच जरूर बोलिए, पर सच बोलने से पहले थोड़ा सा रुकिए, ठहरिए, सोचिए किन शब्दों के साथ आप इस सच को देना चाह रहे हैं और किसको। उस व्यक्ति की शख्सियत को समझते हुए आप सच बोलिए। हो सकता है ना ऐसा? कर सकते हैं, हम सब कर सकते हैं। झूठ बोलना आंसर नहीं है कि हम झूठ बोल दें। कई बार कुछ लोग ये भी कहते हैं कि अरे सच बोलने से उनको बुरा लग जाता, तो उनको बुरा ना लगे इसलिए हमने झूठ बोल दिया। जी नहीं, मैं आपसे ये कहूंगी कि कभी भी झूठ मत बोलिए, ना बोलिए, मत बोलिए, पर झूठ मत बोलिए। आपकी पर्सनैलिटी का एक सिग्नेचर होना चाहिए। आपको देख के, आपसे मिलके या बिना मिले भी लोग आपके बारे में ये कह सकें कि अगर वो कह रहे हैं तो सच होगा। आपको पता है युधिष्ठिर हमें सबको याद है, सच्चाई के लिए उनको जाना जाता है, और ऐसी बहुत सारी शख्सियतें हैं। इसका हमें बहुत बहुत ध्यान रखना चाहिए कि हम कभी भी अपने रिश्तों में झूठ ना बोलें। दूसरा, मुझे लगता है कई बार तकरार हो जाती है, कई बार कुछ बातों पे मनमुटाव हो जाता है, छोटी छोटी ऐसी बातें होती हैं जो हम एक दूसरे से रूठ जाते हैं। और कहते हैं ना, जब जंग अपनों से हो तो हार जाना बेहतर है। एक ने कही, दूजे ने मानी, कह गए संत दोनों ही ज्ञानी। कई बार हम दूसरे की बात को मानना ही नहीं चाहते, किसी भी कॉस्ट पर हम अड़े रहते हैं, नहीं हम ही सही हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। आपको जरूर समय देना है दूसरे की बात को समझने का। कोशिश कीजिए कि जो सामने व्यक्ति आपसे बात कर रहे हैं, क्योंकि आपके हृदय में उनके लिए सम्मान है, प्यार है, मोहब्बत है, तो उनकी बात को जरूर सुनिए। थोड़ा सा अपने दिमाग में लाइए कि ये अपनी जगह सही है। आप ये महसूस करेंगे। बहुत बार ऐसा होता है कि अगर हम बहुत ध्यान से सोचे तो हम ये पाते हैं कि अरे यार फालतू उनसे लड़ लिए, फालतू उनसे मनमुटाव हो गया, कह तो वो भी सही रहे थे। होता है ना ऐसा? आपके साथ होता है कि नहीं? नहीं होता आपके साथ ऐसा, पर ऐसा होता है, मेरे साथ तो होता है। तो इस बात का भी ध्यान रखिए कि हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम एक दूसरे को एक अंडरस्टैंडिंग, वी शुड बिल्ड ए अंडरस्टैंडिंग। तुमने अगर मुझे कुछ कह दिया है या कभी तुमने कुछ बोल दिया है तो मैं बुरा मान के भी बुरा नहीं मान रही हूं। क्यों? क्योंकि उस समय हो सकता है तुम्हारा मूड खराब हो, तुम किसी ऐसी मानसिक स्थिति से गुजर रहे हो जिसमें तुम परेशान हो। कोई बात नहीं, कह दिया तो कह दिया, हम फिर से इस बात पे चर्चा कर लेंगे। अगर हमें संबंधों को जोड़ के मिला के चलना है। पर बहुत बार ऐसा भी होता है कि हम अपनी तरफ से बहुत कदम आगे बढ़ाते हैं,
रिश्तों को जोड़ने के, पर फिर भी अगर सामने वाले की तरफ से 2 कदम आगे नहीं आएंगे तो हमारे 10 कदम बेकार हो जाते हैं। वो कहते हैं ना कि रिश्ते भी इलेक्ट्रिक करंट की तरह होते हैं, अगर गलत जुड़ जाते हैं तो झटके उम्र भर के, और अगर सही जुड़ जाते हैं तो अंधेरों में भी उजाला। होते हैं ना ऐसे बहुत रिश्ते। आप सबके जीवन में भी जरूर होंगे ऐसे रिश्ते, बेशक से आप मेरे साथ शेयर नहीं करना चाहते ना, सही, पर आप इस बात से एग्री करते हैं कि नहीं? करते हैं, बिल्कुल। तो कोई बात नहीं, अगर ऐसा हमें रिश्ता मिल रहा है जिसमें बार बार करंट ही करंट आता जा रहा है, जस्ट लीव इट, फॉरगेट अबाउट इट। कोई फायदा नहीं है, फिर जबरदस्ती उसको पकड़ के रखने की आपको आवश्यकता नहीं है। आपने भरपूर कोशिश कर ली है, फिनिश, इट्स ओवर। जो भी है उनको उनकी जिंदगी मजे से जीने दीजिए, और आप अपनी जिंदगी बहुत मजे से जी सकते हैं, है ना? ऐसा हम कर सकते हैं, एंड वी मस्ट डू इट, कि जबरदस्ती नहीं। एक बहुत बात जो आती है, शायद आप लोगों ने भी बहुत सुना होगा, फॉरगिव एंड फॉरगेट। सुना है ना? आप सबने ये बहुत सुना होगा कि फॉरगिव एंड फॉरगेट। पर मुझे थोड़ा सा इसमें कुछ कहना है, क्योंकि मैंने जो अपने जीवन में ये देखा है उससे मुझे ये समझ आया, यू कैन फॉरगिव बट नेवर फॉरगेट। भूलना नहीं है, क्योंकि आपने फॉरगिव किया है तो उससे आपने क्या सीखा, क्या आपको पता चला? जिसको आपने फॉरगिव किया है उसके बारे में आपको क्या समझ आया, जो आगे से रिपीट वो भी ना करे और आप भी ना करें कि ऐसी नौबत आए। तो हम जिसको भी फॉरगिव कर रहे हैं या जिसको भी क्षमा कर रहे हैं, खुद को सबसे ज्यादा क्षमा करना है हमें। वी मस्ट फॉरगिव आवर ओन सेल्फ, क्योंकि हम अपने को क्षमा नहीं करते हैं तो वी लिव इन पेन, एंड दैट पेन लीड्स टू मेनी डिजीजेस, so many diseases. 99% of our diseases are because of our mind. That is proven by so many scientists. So we should not give pain to our mind. We must forgive ourselves. पर जिनको फॉरगिव कर रहे हैं उनको जरूर जाने अनजाने कभी भी बता दीजिए कि क्षमा कर रहे हैं, पर कृपा करके दोबारा इसकी पुनरावृत्ति ना हो। गलतियों को दोहराना सही नहीं है। मैं ये कहूंगी, आप गलतियां कीजिए, जितनी मर्जी करना चाहते हैं कीजिए, पर हर बार नई गलती हो, हर बार नई गलती हो, हम आपको क्षमा कर देंगे, but don't repeat it. We should not repeat the mistakes, and neither we should allow someone else to repeat the mistakes time and again. This is very, very important. I feel कि बहुत जरूरी है, कि अक्सर ऐसा हो जाता है कि मैंने देखा है आजकल ये जो थैंक यू और सॉरी बड़े प्यारे बहुत अच्छे से शब्द हैं, और इनका इस्तेमाल हम कहीं भी कभी भी कैसे भी कर लेते हैं। धक्का दे दिया और सॉरी बोल दिया, इट्स ओवर। सॉरी बोल तो दिया, अब क्या है भाई, इससे ज्यादा और क्या चाहिए आपको? जी नहीं, सॉरी इज नॉट सफिशिएंट। आपको देखना है कि ये सॉरी जिस बात के लिए बोला है वो दोबारा ना आए, और ना आपको सॉरी बोलने की जरूरत महसूस हो। कर सकते हैं ना ऐसा? मेरे ख्याल से हम सब ये कर सकते हैं, और हम सबको ये करना ही चाहिए, चाहे कुछ भी हो। बाकी तो ऐसा है, रिश्तों में खलिशें, रिश्तों में रंजिशें आती ही रहती हैं,
कोई भी ऐसा संपूर्ण व्यक्ति नहीं है जिसके जीवन में सारे रिश्ते सुमधुर, सारे रिश्ते बहुत अच्छे हों। ऐसा नहीं हो पाता है, क्योंकि परमात्मा ने हर इंसान को यूनिक बनाया है। और कहते हैं ना, ये हमारे कुछ पुराने, कुछ इस जन्मों के संस्कार हैं जिनकी वजह से हम इन रिश्तों में बंधते हैं। तो वो हमारा हिसाब चुक करने आते हैं। They want to make the balance of account. कई बार कहते हैं ना, मैंने तो उसके साथ ऐसा कुछ किया ही नहीं, मैंने तो उसको कभी धोखा नहीं दिया, मैंने तो उसके साथ कुछ गलत नहीं किया, मैंने उसका इतना किया, इतना किया, इतना किया, फिर मेरे साथ उसने ऐसा क्यों किया। ये प्रश्न आना नहीं चाहिए। क्यों नहीं आना चाहिए? जब भी ये प्रश्न आपके दिमाग में आ रहा है, अपने आप को बता दीजिए, कभी ना कभी, कहीं ना कहीं, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, और परसों नहीं तो कब 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 आपने जरूर कहीं कुछ गड़बड़ की है, जिसकी वजह से आज वो आपके साथ अपना हिसाब क्लियर कर रहे हैं। तो कर लेने दीजिए, खुशी से एक्सेप्ट इट। भीष्म पितामह ने, उनके रास्ते में एक स्नेक जा रहा था और उसको बचाने के लिए उन्होंने उसको एक डंडी से उठा के और फेंक दिया था, और वो जिस झाड़ी में गिरा था उसमें कांटे ही कांटे थे। भीष्म पितामह उसको जीवन दान दे रहे थे, परंतु वो कांटों में उलझ गया था। और जब मृत्यु शैया पर भीष्म पितामह अनेक अनेक तीरों पर लेटे थे, तो ये प्रश्न उन्होंने योगेश्वर से किया था कि मेरे साथ ऐसा क्यों? मैंने तो ऐसा कुछ भी नहीं किया। और तब जब पास्ट लाइफ रिग्रेशन में वो गए 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 हजारों साल पहले जब वो पहुंचे, तो पता चला कि ऐसा किया था। तो बहुत छोटी छोटी चीजें हैं जो हम भूल जाते हैं। 4 दिन पहले क्या खाया था, मेरे ख्याल से, मुझे तो याद नहीं है, कल का भी बहुत अच्छे से, और शायद आप लोगों को भी नहीं याद होगा कि 4 दिन पहले आपने लंच में क्या खाया था। नहीं है ना याद? आप सबको याद है, बहुत मजे की बात है। मैं तो भूल जाती हूँ। तो हम जब ये भूल जाते हैं तो हम क्या कर्म करते रहते हैं, उनका हमारे पास कोई अकाउंट नहीं रहता है। और इसलिए हमको अक्सर फिर ये मिलता ही है कुछ ना कुछ परिणाम। तो उसमें घबराना नहीं है, उसमें परेशान नहीं होना है। इट्स ओके। हमें मन में कभी भी आत्मग्लानि नहीं आनी चाहिए। वी शुड नेवर फील गिल्टी। हम अगर गिल्टी फील करते हैं तो हम कहीं ना कहीं अपने आप को कमजोर करते जाते हैं। हमसे जो हो गया, इट्स ओवर। वी शुड सिट एंड एनालाइज आवर ओन सेल्फ। अगर हमसे गलती हुई है, यस, विल नॉट रिपीट इट। और अगर हमसे गलती नहीं हुई है और आपको मैं गलत लग रही हूं, हार्डली मैटर्स, दैट डजंट मैटर। क्योंकि बिकॉज आई नो दैट आई एम नॉट रॉन्ग। पर ऐसा नहीं है कि मैं कभी गलत हो ही नहीं सकती। नो, I have to sit and analyze what wrong I have done. That is a must. और अक्सर क्या होता है, हमारा अहंकार, हमारा ईगो बहुत पावरफुल हो जाता है और उसमें हम अपनी गलती को मानते ही नहीं। होता है ना ऐसा? होता है।
आप लोग क्यों नहीं हाथ मुझे दिखा रहे हैं, या तो शायद आपके साथ ऐसा हो नहीं रहा पर ऐसा होता है। एक और मजेदार बात वो है पति पत्नी के रिश्तों की, जिसमें अक्सर उलझने आती हैं ना। हो सकता है आपकी मैरिड लाइफ बहुत शानदार हो, बहुत मजेदार हो, और अगर है तो इसमें आपकी पत्नी का और या फिर आपके पति का बहुत बड़ा योगदान है। बताइए कैसे? मैं सारी लेडीज को, ऑल महिलाएं, जितनी भी महिलाएं हैं, उनको एक एडवाइस जरूर देना चाहूंगी। बहुत इंपॉर्टेंट है। आप लोग घर पे जाके अपनी वाइफ्स को बताइए, या जो लोग सुन रहे हैं वो वैसे ही अपना लेंगे। पता है क्या, आपका हस्बैंड कैसा भी हो, भले ही लोग उसको कहते हो कि तू तो बेकार है, अरे यार तुझे कुछ नहीं आता, तुझे इतना भी नहीं आता, but a wife should never say this. She should always boost the ego of her husband. आपसे काबिल कोई है ही नहीं, आपसे होशियार कोई हो ही नहीं सकता, आपसे अच्छा कौन, कोई भी नहीं। देखिए, दिमाग सबके पास है, अब कौन कितना इस्तेमाल कर रहा है हार्डली मैटर्स। वाइफ को इस बात का बहुत ध्यान देना है, और अगर आपने ऐसा कर लिया तो मैं आपको दावे से लिख के दे सकती हूँ स्टैम्प पेपर पर कि आपसे अच्छा संबंध हस्बैंड वाइफ वाला किसी का नहीं होगा। And for a husband also there is an advice. Yes. अक्सर ऐसा होता है, स्वभाव से जो महिलाएं होती हैं वो बहुत भावुक होती हैं, बहुत सेंटिमेंटल होती हैं, और जब वो भावनाओं में बहती हैं तब उनको कुछ भी ख्याल नहीं रहता, आंसू बहाती जाती हैं, कुछ भी बोलती जाती हैं, कुछ भी कहती जाती हैं। हस्बैंड को उस समय क्या करना चाहिए? क्या करना चाहिए? आप सब जो भी सोच रहे हैं सही सोच रहे हैं, पर मेरा ये कहना है कि हस्बैंड को उस समय शांत रहना चाहिए, चुपचाप रहना चाहिए, और देखना चाहिए, उनको पूरा खाली होने देना चाहिए। Let them take out everything which is in their heart. जब आप पूरा खाली होने देंगे तो क्या होगा, जैसे वॉमिट करते ना हम, कई बार इंडाइजेशन होता है तो वी वॉमिट, पर वॉमिट के बाद कैसा लगता है? ओह व्हाट ए रिलीफ, बड़ा अच्छा सा लगता है। सेम, जब इमोशंस हैं, जब सेंटिमेंट्स हैं, जब भावनाओं में इतना बह गए हैं और कुछ भी बोल रहे हैं, तो बोलने दीजिए, वक्त दीजिए, टाइम दीजिए, बैठिए, ऐसा नहीं है छोड़ के चले जाए, बैठिए, let her take out everything, let her empty herself, और उसके बाद जब आप कोई भी रिएक्शन देते हैं तो she accepts you, वो आपकी बात को सुन लेंगी, और आपके पास भी क्योंकि इतना समय मिल गया है आपको, तो आप भी बहुत अच्छी सी कोई बात बोल पाएंगे। ये भी रिश्तों को खूबसूरत बनाने की एक कला है। हस्बैंड वाइफ के रिलेशनशिप में बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम एक दूसरे को अंडरस्टैंड करें, एक दूसरे को विश्वास दें पूरा 100%। हमें ट्रस्टवर्दी होना होगा, और उसके लिए क्या करना है, कभी भी 1% भी अगर ऐसा लगता है कि विश्वास टूट रहा है, तुरंत सब छोड़ दीजिए, समय निकालिए, बैठिए एक साथ, डिस्कस कीजिए, और फिर दोबारा ऐसा ना हो कि विश्वास टूटे,
उस पर काम कीजिए। संबंधों को बहुत लंबा लेकर चलना है। पर फिर से एक बात आ जाती है, आप सबके मन में आ ही रही है, ये मैं महसूस कर रही हूँ, क्योंकि स्माइल आपकी मुझे नहीं दिख रही है। आप बहुत सीरियस हो गए हैं आप लोग। फिर से मुस्कुरा दीजिए एक बार अच्छे से। जी बिल्कुल। मुस्कुराते रहिए, आप मुस्कुराते रहिए, तो मुझे ये यकीन रहेगा कि आप खुश हैं और आप जो सुन रहे हैं आपको अच्छा लग रहा है। अगर आप इतने सीरियस हो जाएंगे, माहौल पहले इस कोरोना ने इतना सीरियस बनाया हुआ है और आप सीरियस हो जाएंगे, तो मैं शायद बात नहीं कर पाऊंगी, क्योंकि आपकी गंभीरता मुझे दुख देगी। मुस्कुराते रहिए। तो कुछ रिश्ते ऐसे भी होते हैं, किराए के मकान जैसे। हम किराए के मकान में रहते हैं, उसको कितना खूबसूरत सजा के रखते हैं, कितना उसका ध्यान देते हैं, ये डेकोरेटिव पीस, वो डेकोरेटिव पीस, ये सफाई, पर फिर भी वो मकान कभी अपना नहीं होता। ऐसे रिश्ते अगर आपके जीवन में हैं या आ रहे हैं और आपने बहुत मोहब्बत से, बहुत प्यार से उनको निभाने की कोशिश की है, फिर भी वो आपके नहीं हो पा रहे, तो किराए के मकान की तरह भूल जाइए। एक समय के बाद उनको छोड़ दीजिए, उनको उनकी जिंदगी में खुश रहने का मौका दीजिए। पर एक बात बहुत जरूरी है जो मैं आप सबके साथ शेयर करना चाहूंगी, कि कभी भी अगर आपकी किसी से लड़ाई भी हो गई है, झगड़ा भी हो गया है और आपने संबंधों को बिल्कुल बंद कर लिया है, तोड़ लिया है, बातचीत नहीं कर रहे हैं, ना सही, पर अपने दिल से उनको दुआएं देना मत छोड़िए। कीप ऑन ब्लेसिंग देम, कीप ऑन सेंडिंग गुड विशेस टू देम। और ये वाइब्रेशंस जो आपकी होती हैं, मैं आपको बता रही हूं और मैंने अपने जीवन में अनुभव किया है। ऐसे बहुत से मेरे को भी ऐसे संबंध मिले हैं जो पूरी तरह टूट गए थे। ऐसा लगता था, जो कहते हैं ना, रहीबन धागा प्रेम का तोड़ो मत चटकाए, टूटे से फिर ना जुड़े, जुड़े गांठ पड़ जाए। ऐसे रिश्ते मैंने देखे हैं, मेरे जीवन में आए हैं, पर वो वाइब्रेशंस, जो गुड विशेस, जो दुआएं दी हैं, और मैंने पाया है कि 10 साल 5 साल बाद वो लौट के फिर आ गए हैं। तो चाहे किसी से कैसा भी झगड़ा हो, किसी से कैसी भी आपकी नोकझोंक हो, बात हो, रिश्ते बंद हो, पर दुआएं देने में कसर मत छोड़िए, देते रहिए, क्योंकि जो आप देते हैं वो ही भरपूर मिलता है आपको। इसलिए आपके पास जो है वो जरूर दीजिए, और आपके पास सब अच्छा ही है। ये टॉपिक तो ऐसा है कि मुझे लगता है दीपक जी ने मुझे ये ऑनर दिया है, सम्मान दिया है कि मैं कॉर्डियल रिलेशंस पे बोलूं, और कॉर्डियल रिलेशंस कहीं ना कहीं मेरे दिल से बहुत जुड़ा है, क्योंकि रिश्ते हैं तो मैं हूं, रिश्ते हैं तो ये जहान है, वरना कुछ भी नहीं। अगर आपके पास कोई सवाल है, आप कुछ कहना चाहते हैं, कुछ पूछना चाहते हैं, आपका स्वागत है। बहुत शुक्रिया, ये तालियां मुझे बड़ी अच्छी लग रही है, बस चेहरे पे भी मुस्कुराहट बहुत बना बहुत के धन्यवाद रखिए। मैम, हम सब आपके ऋणी हैं। जी बहुत बहुत धन्यवाद, हम सब आपके ऋणी हैं। आपने आज जो समय बांधा है और जो लोगों को सच में रिश्ते कैसे निभाने चाहिए और रिश्ते एक्चुअली में क्या होते हैं, जी जिस तरह से आपने समझाया है, मुझे लगता है सब लोग मंत्रमुग्ध हो गए हैं। और अब
शब्द नहीं होंगे किसी के पास भी इसको व्याख्यान करने के लिए। थैंक यू सो मच। जैसा आपने कहा है, मैं फिर भी लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा, अगर किसी के पास में कोई सवाल है या कोई कुछ कहना चाहता है। अब मेरे पास तो एक जरूर सवाल है, इट इज जी, अ जरूर। बर्निंग क्वेश्चन। सो कई बार ऐसा होता है कि वाइफ जो है रूठ जाती है, हमें पता नहीं होता कि क्यों मुंह बना हुआ है। हाँ हाँ तो अब हम अंतर्यामी नहीं है, बिल्कुल। है ना? तो कई बार क्या होता है ना कि ऑफ कोर्स मतलब विद ड्यू रिस्पेक्ट, लेडीज का दिमाग एक अलग तरीके से चलता है, जी जो जी मेरे को है ना। बिल्कुल बिल्कुल। अकॉर्डिंग टू योर एक्सपीरियंस, हाँ हाँ उस सिचुएशन में क्या करना चाहिए कि मतलब व्हेन यू सी योर स्पाउस, यू नो, देयर इज अ फेस एंड वी आर नॉट अवेयर एट ऑल, so it's a very typical situation, and so what do you think we should do? I mean, it's a very dangerous as well, because we are not aware कि what has happened or what is going to happen. मतलब ना पास्ट का पता है ना प्रेजेंट, तो सामने दिख ही रहा, फ्यूचर का नहीं पता। तो how should you deal this? मुझे आपका प्रश्न इतना अच्छा लगा है और इतना मेरे दिल के करीब है, पर मैं ये कहना चाहती हूँ कि एक मैंने किताब पढ़ी थी, Men are from the Mars and women are from the Venus, और वो बड़ी मजेदार किताब है। अगर आपने नहीं पढ़ी है जरूर पढ़िएगा। Someone आपको बहुत recommended मजा me, आएगा। लेकिन किताब पढ़ने का शौक नहीं है, but I would, अब आपने मेरे को याद दिला दी, मैं दोबारा जरूर पढ़ना पड़ेगा मेरे ख्याल से। जी 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 जी। Yes. मैंने जो आपने प्रश्न पूछा है उसका आपको बहुत जो जवाब मेरे पास है वो जरूर दूंगी कि कभी पत्नी अगर रूठ जाती है और समझ नहीं आता कि कारण क्या ये नहीं है, पता कि रूठी हुई है या गुस्सा है या क्या है, वो ब्लैंक है, मतलब यू कैन नॉट मेक आउट। ब्लैंक है। हाँ Yes, she is not मतलब responding. आपको अच्छा नहीं लग रहा कि वो ब्लैंक है, आपको अब अच्छा मुझे नहीं ये लग डिसाइड रहा। भी करना है कि मेरे को अच्छा नहीं लगना है या मुझे खुश होना है, वो एक अलग हाँ, चीज है। ये भी आपको नहीं समझ आ रहा है। आप कहीं ना कहीं एक अजीब सी मनोस्थिति में घूम रहे हैं। अब Exactly, ऐसी confused पूरा। जी 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 ऐसी स्थिति अगर कभी भी आपके पास आती है, जब आपको ये महसूस होता है, तो मेरा तो एक ही कहना है, शायद मेरे पति भी इसको बहुत अच्छे से जान गए हैं और जानते हैं, और वो ऐसा करते ही हैं कि अगर कभी भी ऐसा हो रहा है तो मोहब्बत का रिश्ता है भाई साहब, जाइए उनके पास, लगाइए उनको गले और प्यार से पूछ लीजिए कि भाई क्या बात है, तुम्हारी मुस्कुराहट पे तो हम दीवाने हैं, फिर क्यों रूठी हो मेरी जान। बस इतना सा, बस इतना सा कर ये मधुबन यही नहीं करता, बस इसको यही नहीं करना आता। ये जो आपने करना बात बोल दी ना, पड़ेगा। वो मुझे अपने वो सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना पड़ेगा वो प्रोग्राम में। Gaurav, great question. I must appreciate you that you have asked a wonderful question. Actually, Yes, क्योंकि एक्चुअली में definitely. एक लेवल पे आके ना, और साढ़े पंजाबी के अंदर जनानी नहीं समझ नहीं आती भाई की सोची पई है, अरे आगे मत्था ही टेक दो। सही सही। Thank you for the great answer as well. Matlab, of course, this is like need of an hour, but sometimes, you know, we all are ourselves, every time, you know, we all are struggling, whether it's Yes. like husband, father, mother, children, so हाँ. everyone, but we just need this pyar wale shabd. Yes. So it makes Yes. sense. They are very powerful. अब करेगा तू, They are जब very डालेगा powerful. पीछे से एक हग देना किसी को भी, चाहे वो सासू माँ हो, ससुर जी हो, देवर हो, जेठ हो, जेठानी हो, कोई भी अगर लग रहा है रूठा रूठा सा, तो पीछे से पकड़ लीजिए। आपकी वाइब्रेशंस, आपकी जो मोहब्बत की वाइब्रेशंस जब जाएंगी ना, वो कितने भी पत्थर हो गए हो पिघल के मोम हो जाएंगे। क्या बात है। सच्चाई झुक नहीं सकती बनावट के असूलों से, और खुशबू आ नहीं सकती कागज के फूलों से। बिल्कुल सही बात है, पर प्यार भी सच्चा होना चाहिए। ये बात आपने बिल्कुल सही कही है, मैं आपकी इस बात से बिल्कुल सहमत हूँ कि बनावट नहीं। गौरव जी, I have got another question. जी जी जी। कई बार जी। क्या होता है ना, किसी की बात लग जाती है हाँ कि आपने उस फंक्शन में मुझे ऐसे बोल दिया था या फिर आपने उस टाइम ऐसे नहीं किया था, हाँ और वो बात होती है ना कि तो वो फिर हमेशा आती है। तो हाँ उस चीज को लेके हम लोग हमेशा अपने दिमाग में रखते हैं, या सामने वाला व्यक्ति रखता है कि नहीं भाई हाँ। उसने तो ऐसा किया, तो वो एक इम्प्रेशन बन जाता है सामने हाँ। वाले इंसान का।
राइट? सो हाउ टू ब्रेक दैट बैरियर? वो तो ऑफ कोर्स इट इज पॉसिबल कि एक बंदा चाहता है रिलेशनशिप मेंटेन करना, एक बंदा नहीं चाहता. हाँ, ये तो होता है. कई बार ऐसा होता है कि वन साइडेड हम एक तरफ से कदम बढ़ाते जाते हैं रिश्ते को बेहतर बनाने का, पर दूसरा व्यक्ति उसमें हमारी मदद नहीं करता है. पर हमें अपनी तरफ से कोशिश करती रहने हैं, काफी हद तक करते रहना है. पर जैसा कि मैंने कहा था ना कि कुछ ऐसे संबंध होते हैं, कुछ ऐसे होते हैं जो करंट देते ही रहते हैं, तो उनका तो देखिए कुछ समय के बाद तो हमें उन्हें भूलना ही पड़ता है, छोड़ना ही पड़ता है. पर मुझे ऐसा लगता है कि अगर कभी कोई ऐसी बात आती है कि हमें आपने 10 अक्टूबर 1919 में ये कहा था, अरे भाई अगर इतना रजिस्टर मेंटेन्ड है तो सबसे पहले तो हमको उस रजिस्टर को फाड़ के फेंकना है. जस्ट फॉरगेट, हो गया. हाँ, मैंने हम तो फाड़ देते हैं, सामने वाले ने संभाल के रखा हुआ है. सामने वाले को ये बताना है कि हाँ भाई सारी गलती मेरी थी. जो भी तुम्हें याद है, जो भी घटना हुई थी, वहां मैंने ऐसे बोला था, पार्टी में ये बोला था, उनके सामने ये बोला था, चाचा जी के सामने ये कहा था, भाई के सामने कहा था, बिल्कुल सही है जी, मेरी गलती, दोबारा नहीं होगा. अब खुश, भूल जाओ यार, छोड़ दो. वो तो इट्स लाइक फिर आफ्टर मैरिज तो गलती तो फिर अपनी होती है, हस्बैंड की होती है. ठीक है ना, अगर मेरा रिश्ता मेरी पत्नी से खूबसूरती में आगे बढ़ रहा है तो कहते हैं इश्क में, देखिए इश्क में हार मानना बहुत मजे की बात होती है. जो हारते हैं ना, इश्क में जो हारते हैं, मोहब्बत में जो हारते हैं, वही शायर बनते हैं बड़े शानदार. और जब जब ऐसा होगा तो झट से लिख डालिए एक सुंदर सी कविता, एक रचना, एक शायरी. जब कुछ ना समझ आए, जब पत्नी बात समझने को तैयार ही नहीं है, तो खामोश हो जाइए, चुप नहीं, खामोश हो जाइए. और उस समय आप इतने क्रिएटिव होंगे, आपका माइंड इतना क्रिएटिव होगा कि उस समय लिख डालिए कुछ. और उससे क्या होगा, आपकी जो स्ट्रेस है, जो टेंशन इस वजह से आ रही है, वो रिलीज होगी. This is so interesting. Very nice. And DJ, Thank soon you. you are going to send us a baby shower invitation because you learned very great. Very nice, very nice. Yes, we all are waiting for that. Which man has elaborated? Sherry sir has given the crux of that message. Take though. We can take somebody else's questions now. Oh yes. Sonu, Yes. are you there? I think Sonu has raised a hand, right? Yes, I am. गौरव जी ने Sonu, सारा please. मेरा क्वेश्चन खा गए हैं. तुम कुछ पी लो अब. नहीं, अब हम पिएंगे नहीं, अब हम अपना पर्सपेक्टिव बताते हैं. थैंक यू मैम, दैट वाज रियली वंडरफुल. आई मीन जब रिलेशनशिप्स की बात आती है तो हाँ, हम बहुत ही कॉम्प्लेक्सिटी में चले जाते हैं, बट मुझे ऐसा लगता है कि जितनी चीजों को सिंपल रखा जाए उतना बेटर रहता है. बिकॉज सिंपल चीजें ही हमसे डाइजेस्ट नहीं होती है, कॉम्प्लेक्सिटी तो पता नहीं डायरिया ही हो जाता है. सही बात है, बिल्कुल तो सही बात. मैम मेरा एक सिंपल सा सवाल है, जैसे गौरव जी ने बिल्कुल सही बोला कि वाइफ के दिमाग में क्या चल रहा है, जैसे हस्बैंड को नहीं पता चलता, सिमिलरली हस्बैंड के दिमाग में क्या चल रहा है वाइफ को नहीं पता चलता. It's as simple as it is, right? So if the husband think that you know कि मैं जो हूँ सही हूँ, ये क्यों गुस्सा हो गई, you know, या ये क्यों ऐसा हो गया, and then बात ही नहीं करना. तो भाई मत कर, एक दिन नहीं करे, 2 दिन नहीं करेगा, तीसरे दिन तो you have to talk, क्योंकि अब 4 दीवारी में रहते हैं, कोई और तो है नहीं बात करने के लिए, तो एक दूसरे की करनी पड़ती है. But if I'm not talking about husband and wife only, like friends हो या family member हो, कोई भी, अगर कोई उस टॉपिक को डिस्कस ही नहीं करना चाहता कि मतलब क्या प्रॉब्लम थी, क्यों थी, किस लिए थी, जबकि मी एज अ पर्सन, लाइक मेरे लिए बहुत जरूरी होता है कि उस प्रॉब्लम को डिस्कस की जाए, उसको एक्चुअली समझा जाए कि क्यों ये प्रॉब्लम हुई है. एंड अगर मेरे सामने वाले को ये जरूरी नहीं लगता कि ये चीज डिस्कस करनी चाहिए, एंड फिर वो मुझे इनिशियली बहुत इरिटेट करती थी, लेकिन अब आई हैव कम इन टर्म्स कि ठीक है, ये डिस्कस नहीं करेगा तो लेट्स लीव इट. बट देन मेरा जो बेसिक नेचर है वो तो वही रहता है कि आई नीड टू डिस्कस. तो वो उस दिन नहीं, 2 दिन बाद नहीं, लेकिन महीने भर बाद या कभी भी आती है ऑन द टेबल. तो मुझे ये जानना है कि
ये जो मेरी आदत हो गई है कि अब मैं उसी वक्त नहीं बट बाद में करती हूँ, जो मुझे परेशान भी करती है, तो उस चीज को कैसे डील की जाए? मतलब जब मुझे पता है कि सामने वाला डिस्कस करने को रेडी नहीं है, बट स्टिल आई वांट टू, बिकॉज दैट इज माय बेसिक नेचर, मुझे डिस्कस करना है, मुझे खत्म करना है, मैं वो बैगेज लेके नहीं रह सकती कि मेरे साथ ऐसा कोई प्रॉब्लम है। तो उस चीज को कैसे डील करते हैं? बहुत बहुत शानदार आपका प्रश्न है, और ये शायद सबके साथ जीवन में ऐसा होता है, पर जो मैंने जाना है या समझा है उसमें मैं एक ही बात कहूंगी कि ऐसा कब होता है, डिस्कस सामने वाला व्यक्ति या हमारा हस्बैंड या हमारी वाइफ या कोई भी रिलेशन, वो हमारे साथ डिस्कस कब नहीं करते हैं, जब उनका पास्ट एक्सपीरियंस, चाहे वो हमारे साथ हो या किसी के भी साथ हो, बहुत अच्छा नहीं होता। जनरली क्या होता है, जब हम डिस्कशन करते हैं तो हम अपने नॉर्मल सेल्फ में नहीं रह पाते हैं, हम जस्टिफाई करते हैं अपने आप को, डिफेंड करते हैं अपने आप को, और जो भी हमारे सामने है व्यक्ति, उसकी हम खामियां पूरी लिस्ट आउट करते हैं जो उसको अच्छी नहीं लगती। और कई बार हमारे शब्दों का चुनाव भी बात करते समय गड़बड़ा जाता है, जो पेन क्रिएट करता है, दुख क्रिएट करता है। तो डिस्कशन हमेशा ऐसा होना चाहिए जिसमें हम बहुत अच्छे शब्दों का इस्तेमाल करें, रेस्पेक्टफुल रहें इन एनी केस, और अपनी बात ही न कहे जाएं, सामने के जो व्यक्ति है हमारे सामने, उसको बराबर से बोलने का मौका दिया जाए, वो भी अपनी बात कह सके, और उस बात को जो वो कह रहे हैं उसको हम अच्छे से समझें, जाने, कोशिश करें, और उनको भी रिक्वेस्ट करें कि वो भी हमारी बात को समझें। पर अगर फिर भी हमारे अच्छे से डिस्कशन करने के बाद भी, जैसा कि मेरा अनुभव है वो यही है कि अक्सर क्या होता है, जब फैमिली में या फ्रेंड्स के साथ कुछ ऐसी बात हो जाती है जो बहुत डिस्टर्बिंग होती है, तो हम लोग अपने शब्दों का प्रयोग बहुत गलत करने लगते हैं, और हम पास्ट का पूरा रजिस्टर खोल देते हैं डेट वाइज। वो एक पर्टिकुलर बात को छोड़ के साथ में बहुत सारे एसोसिएट कर देते हैं चीजें, उस बार भी आपने ये किया था, तब भी आपने ये किया था, वहां भी आपने ये किया था, इधर भी आपने ये किया था, और हम क्या करते हैं, कल्प्रिट बना देते हैं। और जब भी कोई व्यक्ति को आप कल्प्रिट बनाते हैं तो वो आपके साथ डिस्कशन नहीं करना चाहते, चाहे कुछ भी हो। हर व्यक्ति अपने आप में यूनिक है, सबका स्वभाव आपके जैसा नहीं है, सब आपके जैसे मीठे, नम्र, विनम्र या समझदार नहीं है, ये एक्सेप्ट कर लीजिए। पर सामने वाले व्यक्ति को मौका दीजिए, एक एक करके उसके साथ बहुत रिस्पेक्टफुली, बहुत अच्छे से अगर आप बैठेंगे, बात करेंगे, तो वो जरूर आपकी बात को सुनेंगे। और जैसा कि आपने कहा कि मेरे दिल में वो बात रह जाती है और मुझे लगता है कि आज डिस्कस नहीं किया तो मैं 10 दिन बाद करूंगी, महीने भर बाद करूंगी, पर करूंगी जरूर। बहुत अच्छी बात है, पर मैं ये आपसे कहूंगी कि आप सेनर मोमेंट्स ढूंढिए। कुछ बड़े खूबसूरत समय होते हैं जब हमारा हस्बैंड टेंशन फ्री होता है, स्ट्रेस फ्री होता है, हैप्पी होता है, खुश मूड में होते हैं, वो बड़े अच्छे मूड में होते हैं। अगर आप उस समय उनके लिए बढ़िया से एक कप कॉफी लेकर आए, साथ में उन्हें जो पसंद है पकौड़े लेकर आए, और फिर उनके साथ अगर चर्चा करेंगे तो वो जरूर हमारी बात को सुनेंगे। थोड़ा सा एफर्ट हमें डालना ही होगा। ट्रू मैम, ट्रू, बिना एफर्ट के तो Thank you, कुछ भी ma'am. नहीं हो Thank रहा है you. यहाँ पे। थैंक यू सो मच मैम, थैंक सोनू जी, यू। आई होप आपको आंसर मिल गया। बस हमें Thank एक चीज का ध्यान रखना है, डिस्कशन आर्ग्यूमेंट में कन्वर्ट नहीं होना चाहिए, दैट्स ऑल। Yes, very important. Yes. डिस्कशन तक ही रहने दीजिए, बातचीत को बातचीत में ही सुलझा दीजिए, ठीक है। चलिए, अब आप लोगों बिल्कुल के बिल्कुल, सामने थैंक आ यू रहा सो है मच। आज के सेशन के बारे में एक पोल। प्लीज सेशन को रेट कीजिए, कैसा लगा आपको। 1 लीस्ट है और 5 हाईएस्ट है।
Deepak, I think Mohit has a question. So हाँ you जी, can मोहित ask. जी has a question, right? जब तक पोल करते हैं तब तक मोहित जी का क्वेश्चन ले सकते हैं. जी जरूर. Mohit ji, please unmute yourself. कैमरा ऑफ करके चले गए शायद. आज 100% से नीचे जा नहीं रहा engagement. आ गए. मोहित, Am I you wanna ask visible? the question? Go ahead. Okay. कैमरा ऑन करके क्वेश्चन पूछना यार, एक्सप्रेशन भी Camera, I देखना. think. Mohit bhai, are you there? Ma'am, आपकी सबको आवाज आई थी बहुत ना. अच्छा लगा. मैंने कहा था ना आपको, सब मंत्रमुग्ध हो चुके हैं आपके सेशन में ऑलरेडी. जी. I think my video is stopped. I don't know why, but am I audible? Then I'll ask. Yes, you are audible. Yeah, you are audible. Okay, ठीक है. मैं वीडियो कोशिश करूंगा ऑन करने की. I don't know what happened. Okay, my question is, हम अपने रिलेशंस परमानेंटली कैसे सेम इंटेंसिटी से मेंटेन कर सकते हैं when the person is not with you? When the person is not with you means I have not understood. मतलब my father जैसे अब he is not with us, तो मैं चाहता हूँ कि मेरे रिलेशंस और जितने इंटेंसिटी से मैं उनको समझता था, फील करता था, पूरी लाइफ अब भी फील करता रहूं. How can I feel his presence in my life when he is not with us? He is not there with you means that he has left this world. Yes, yes. Okay, okay. So I don't want Beautiful. to lose that feeling. I want to बहुत remember him every day. And how can I do it? How can I bring that intensity of relationships in my everyday life? ब्यूटिफुल. बहुत खूबसूरत आपने और बहुत अच्छा प्रश्न पूछा है कि हमारे अपने जो हमें छोड़ के जा चुके हैं और जब तक वो हमारे साथ रहे हम उस संबंध को इतना महत्व नहीं दे पाए, पर अब जब वो चले गए हैं और तब हम चाह रहे हैं कि हमारा संबंध फिर से जुड़ जाए, उसके लिए बहुत सुंदर, बहुत सरल तरीका है जो मैं आपको बताना चाहती हूँ आप सबको. पहली बात तो ये जान लीजिए कि जो भी हमें छोड़ के गए हैं वो कहीं नहीं गए हैं, वो यही हैं, इसी यूनिवर्स में हैं. And their vibrations are very much matching with ours. हमारी वाइब्रेशंस और उनकी वाइब्रेशंस अभी भी पूरी तरह कनेक्टेड हैं. इसलिए आपको एक ही काम करना है जो आप कर ही रहे हैं मेरे अंदाज से. हमारे फादर मदर या जो भी उनका जो डीएनए है वो पूरी तरह हमारे अंदर है, जीवित है, वो हमारे अंदर पूरी तरह जीवित हैं. अब बात आती है कि उनके जो गुण थे, उनकी जो खूबियां थी, जो उन्होंने हमें दिया है, जिसके हम ऋणी महसूस होते हैं, हमें उन सारे गुणों को अपनी जनरेशन में जो हमारे सामने जनरेशन आई है उनको देना है. अगर हमारे पिताजी इस बात में विश्वास रखते थे कि सबका भला करो, कोई आपके साथ बुरा भी करता है तो कोई बात नहीं, आप उसका भी अगर भला कर सकते हो तो करो, तो आज आपको वो करना है. उनके जो आइडियल्स थे, उनके जो प्रिंसिपल्स थे, जो भी उनके सिद्धांत थे, आप उनके साथ रहिए, चलिए और करिए. और मैं आपको 100% ये यकीन दिला देना चाहती हूँ कि वो आपको देख रहे हैं, जान रहे हैं, समझ रहे हैं, हर पल हर क्षण वो आपके साथ हैं और रहेंगे और वो बहुत खुश होंगे. वो वाइब्रेशंस विल बी सो पॉजिटिव एंड हैप्पी if you are doing what he wanted from you. So must you do that? Is very simple. That is the best way of remembering anyone. Thank you, ma'am. Thank you so much. Thank you, Mohit. Thank you, ma'am.
Thank you so much. I'm so happy. I'm feeling so honored, and I really want to thank all of you that you all came and listened to me so beautifully, giving a wonderful smile. एक बार फिर smile कीजिए. आप बहुत खुश रहिए. All the best. Thank you to Deepak, all I of want you. to say something to ma'am Yes, publicly yes, for please. just a quick 1 minute. What Pardon? we have learned today from Madhu ma'am is simply remarkable in such easy, simple, and effective language, and Thank you with such so much. personality, such politeness, and such magnanimity, I would say, that she has expressed her thoughts, and the entire object of relationship she has explained was really amazing. And Thank you, Sherry. Thank you so much. Even Sir, I'm I would so also request honored you to please that I'm on felicitate your Madam. platform. yes, and I wanted to invite you, ma'am, if you accept, as one of our advisory board member, as a mentor on relationships. 100%. Because I'm with you. मुझे ऐसा लगता है कि आपकी बहुत जरूरत है. मैं ऐसे बहुत लोगों से मुलाकात कर रहा हूँ फोन पर, वीडियो कॉल जी, पर, जी बिल्कुल. जिन्हें रिश्ते बनाने तो आ गए लेकिन निभाने नहीं आ रहे. तो ये निभाने की कला सीखनी जरूरी है. और जी. मुझे ऐसा लगता है कि आपके तजुर्बे, आपकी बातें उन पे बहुत जी. गहरा इन्फ्लुएंस क्रिएट कर सकती हैं. और जी. मैं चाहूंगा आप हमारे साथ ऑन बोर्ड रहें एज अ मेंटोर. हमें जब भी आपकी जरूरत हो, बिल्कुल. आपकी एडवाइस की जरूरत हो, बीइंग अवर सीनियर, you should be there on 100%. PSI community board member. So I would request Super Suresh to share one detailed poster on this also, and he will coordinate with you. And Sir, we उससे really, पहले really I request appreciate. you to please felicitate ma'am, a token of thank you. Sure, sure. So please accept this digital certificate, Madhu ma'am, and with Thank you heartfelt so gratitude. much. Thank you so much. I'm really honored. You truly I'm deserve feeling it. blessed. You truly deserve much more, but we cannot offer you anything right now Oh, except this. I have got much more. Being with all of you, I am so blessed and feeling so happy. You all should remain very happy and cheerful. Stay blessed always. Thanks a lot, ma'am. Thank you for accepting. Thank you. थैंक यू मैम, थैंक यू वेरी मच. और मैं सभी मेंबर्स को बताना चाहूंगा कि हमारे बीच में आज एक और ग्रेट पर्सनालिटी हैं जी. और मधु मैम के हस्बैंड भी हैं साथ में. और सबसे इम्पोर्टेंट बात कि वो अभी रिसेंटली एक TEDx टॉक भी देके आए हैं जी. और सर मैं रिक्वेस्ट करूंगा आपको, प्लीज आप अपना वीडियो ऑन कर लीजिए. प्रदीप सर, सर सब देखना चाहते हैं आपको मिलना. I'll just request him because he's inside doing some work of his. He remains very busy. So, yeah, but he will definitely come. Yes, I'll make a request. I'll tell my daughter-in-law. She's a sweet girl. मेरी बहुत प्यारी daughter है. मैं कहूँगी she is daughter in love. I call her Akriti. She is Akriti. Akriti बेटा थोड़ा पापा को बुला के लाइए. जी जी. Deepak, I request in the meanwhile, till the time sir come back, please have public speaking तड़का. इन द मीन टाइम और कोई हमारे पार्टिसिपेंट्स में से, कम्युनिटी में से बताना चाहता है पब्लिक स्पीकिंग के कोई टिप? क्योंकि हर बारी जब भी हम कुछ बोल रहे हैं या कुछ कर रहे हैं, कुछ ना कुछ ऐसा जरूर होता है जो कि लोगों को इम्पैक्ट डालता है. और वो क्या है आपकी नजर में, जिससे आप लोगों को अपनी तरफ बांध पाते हैं, आकर्षित कर पाते हैं, या उन लोगों की लाइफ में कुछ चेंज ला पाते हैं? मैं रिक्वेस्ट करूंगा किसी को भी प्लीज अपना कोई इंसिडेंट, अपना कोई टिप शेयर करें. हाँ, मैं शेयर करना चाहता हूँ. अभी मैं वो करूंगा अगर फिजिकल इवेंट्स होते हैं तब क्या किया जाए. तो बहुत अच्छा तरीका है. कई सारे स्पीकर सोचते हैं कि हाउ शुड आई स्टार्ट. तो एक बहुत अच्छा वाक्य आया था, एक कहानी थी एक स्पीकर के बारे में कि गलतियां क्या हो जाती हैं. तो उन्होंने बोला आई डोंट नो वेयर टू स्टार्ट. मतलब आई एम सो कंफ्यूज, आई डोंट नो वेयर टू स्टार्ट फ्रॉम. तो ऑडियंस में से किसी ने चिल्लाकर बोला स्टार्ट फ्रॉम द एंड.
यानी कि अगर आपको पता ही नहीं है शुरुआत कहाँ से करनी है तो आप एंड से करो, खत्म करो और जाओ यहाँ से. वी डोंट वांट टू लिसन टू यू व्हेन यू आर नॉट क्लियर अबाउट व्हाट यू आर सपोज्ड टू डू. तो जब शुरुआत हमें करनी है और नहीं पता कैसे करनी है, क्या करना है, या फिर हम वेन्यू पर टाइम से नहीं पहुंच पाए या उसको नहीं समझ पाए वेन्यू में क्या है, कैसी ऑडियंस है, तो उसका एक बहुत सिंपल तरीका है. आपको इतना 10-15 सेकंड्स तो मिलते हैं कि आप स्टेयर्स चढ़कर स्टेज तक जाएं, राइट? जब आप हॉल में एंटर होते हैं और स्टेज तक पहुंचते हैं, यू गेट 10-15 सेकंड्स. और जब आप उस हॉल में मौजूद हैं और ऑडियंस भी उसी हॉल में है, देयर वुड बी समथिंग कॉमन, चाहे वो स्टेज हो, चाहे वो स्टेयर्स हो, चाहे वो माइक हो, चाहे वो सीट्स हो, चाहे वो फैन हो, कुछ ना कुछ होगा जो सबके बीच में कॉमन है. स्टार्ट विद दैट टॉपिक, उसके बारे में शुरू करो, कुछ बोलो. और वो सारी चीजें ऐसी हैं जो हम जिनका हमने लाइफ में एक्सपीरियंस किया है. चेयर का भी किया है, फैन का भी किया है हमने, अगर वहां पर सैंडविचेस रखे हैं उसका भी किया है. तो स्टार्ट विद दैट टॉपिक ताकि आप शुरुआत कर पाए. और शुरुआत जब हो जाएगी एंड व्हेन यू आर कनेक्टेड टू ऑडियंस, फिर आप अपना टॉपिक जो भी देना चाहते हैं, यू कैन डू इट. तो ये ट्रिक मैंने कई बार अप्लाई की है और बहुत सक्सेसफुल रही है. आप चाहें तो कोशिश कर सकते हैं एक बार, और इट विल सर्टनली बी हेल्पफुल. वंडरफुल 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 मोहित भाई, थैंक यू वेरी मच. दीपक जी, मैं भी कुछ बोल सकता हूँ इस पक्ष में? जी जी सर, जरूर बोलिए. तो मधु जी का तो स्पीच अपने आप में बहुत वंडरफुल थी. तो अभी जो शेरी जी का सवाल था, मतलब क्या आप पब्लिक स्पीकिंग में कर सकते हैं, तो मधु जी के टर्म्स में जो जब हम बोलते हैं, जो वक्ता हम होते हैं और श्रोता होते हैं, उनमें भी एक कॉर्डियल रिलेशन होना चाहिए. और वो कॉर्डियल रिलेशन मधु जी के संदर्भ में सच्चाई और ईमानदारी, और वो दिख जाती है अगर आप बोलते हैं तो बस मेरे को तो यही बोलना है. तब कनेक्शन बहुत अपने आप में ही बहुत ऊपर होता है. और मधु जी ने काफी चीजें बोली, बस जो मेरे को एक चीज बहुत अच्छी लगी, तो मैं बेस्ट बोलना चाहूंगा कि अगर रंजिश रिश्तों में हो ना, तो वहां हार जाना ही बेहतर होता है. बिल्कुल. चलिए, सब लोगों से मैं रिक्वेस्ट करूंगा, प्लीज अपने आप को अनम्यूट कर लीजिए और तालियों से स्वागत करते हैं मेजर प्रदीप खरे सर का. Welcome, Major Pradeep Khare to PSI community. Thank you for joining. Welcome, sir. Congratulations for your Welcome, TED sir. Talk. Welcome. Great to have you. Thanks a lot. It's been a wonderful session. सर, हमारा मान बढ़ गया है. हमारे लिए सम्मान की बात है कि आप हमारे शो में हैं. Yes, yes. सर, हम जानना चाहेंगे, आपने भी रिसेंटली एक TEDx टॉक दी है. Yes, yes. कुछ बताइए पब्लिक स्पीकिंग टिप हमारी कम्युनिटी मेंबर्स के लिए, जिससे कि उनकी लाइफ भी आगे अच्छी हो सके और हमारी भी. Yes, yes. In short, I can. Hello. Am I audible? Yes, yes. Yeah. Please go ahead. In fact, you already have a famous and international public speaking coach and mentor with you, Author Sherry. He has got lots of experience. Whatever little I can just share with you people. One is that in TEDx, their ideas were spreading. Whatever idea you have, your heart, that you should It is getting echo. prepare to हाँ, मधु जी थोड़ी देर के लिए आपको म्यूट करना पड़ेगा because you are in the जी, same this thing. That is the Yes, reason. that is what I am doing. Yes, That yes. is what. But ये हो नहीं रहा अभी. Can I request any co-host Deepak done. ji? Or... Done. Yeah, thank you. Okay. She's pretty good. I think it's done now. Yes. Yes. So I was saying ki one is that you should identify what is your idea was spreading. That is the idea which you have to work on. I'll just shift to another room. I think that echo is coming. Sir, it is better now. You can go ahead. So I have come to the other room now actually. Because in the same room that now it's all right? No echo is there? Yeah, sir. अब वास्तु change हो गया. You can go ahead. Yes. So one is the first you have to identify the idea was spreading, something which is very close to your heart. And after identifying that idea, then what one should do is write out that idea in the form of a conversation. It should not be a speech. It should be something as if you're talking to the audience. So as much as the audience can be involved in the manner of conversation,
that is how the talk will be interesting. And the opening should be so interesting that you should grab the attention of the people in the first 30 seconds. It can be either with some quotation, it can be with some startling statistics, or it can be with some personal story. Personal story, of course, has got a great importance in any TEDx talks. Most of the TEDx talks which you people might have seen, they involve the personal stories of the speaker, which are related to the theme, the topic that he is taking. Because personal stories, people can relate to it. And if somebody starts with a personal story, then it is always, the people are interested to know what is happening. Then there should be an element of surprise, curiosity. If it is there, then the people are hooked on to that. They want to know what is going to come next. And another important point is the sense of humor. If we can involve some sprinkling of humor in between, then the people are always interested to listen, and they can laugh for a while and enjoy the show. And over and above everything else, there should be a takeaway for the audience. When we always plan a TEDx talk, or for that matter, any speech, there should be some takeaway. So when we plan the talk, we should always think as the audience, why should they listen to you? What have they got to gain? What will they take away and incorporate in their lives to become better? So these are some of the things which I feel I can share with you. Thank you very much, sir. That was a wonderful sharing and a very valuable tip for everyone. Thanks a lot. So Thank with you. this, I'm we honored. come, yeah, sir, it's an honor for us. Hello. So with this, we come to an end of this session. It Yes. was a great learning from Madhu ma'am and a wonderful ending by Pradeep Khare sir. Thanks a lot. Thank you Before so we much. go, I'll just summarize one thing for you. निश्चलता और समर्पण से भी ऊपर अगर कुछ है तो वो प्यार है. प्यार का एहसास ही जिंदगी है. प्यार है तो संसार है. तो प्लीज प्यार बांटिए, प्यार फैलाइए, प्यार से रहिए और 2 गज की दूरी प्लीज मेंटेन करके रखिए. मास्क पहनिए. Again, thank you very much. Till we meet again next Thursday on Thank another you, great everyone. session. Thank you, everyone. Thank you. Great Thank hosting, you, Deepak Jerry. ji. Thank Thank you, sir. you, Thank Deepak. you. Thank you for joining. Really enjoyed your God bless Thanks you. a lot.